آج موضوع ہے اعتکاف کے تعلق سے، اس لیے خاص طور پر آج اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ آج شام کو عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد ظاہری بات ہے 21 رمضان شروع ہو جائے گی، اور اس سے پہلے معتکفین مساجد میں قیام کر لیں گے اور پورے عشرے کے لیے چاند رات تک وہیں پر موجود رہیں گے۔ یہ معتکفین بہت مبارک لوگ ہوتے ہیں، بہت مقدس لوگ ہوتے ہیں، انہیں در حقیقت پورے محلے کی آنکھوں کا تارا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پورے محلے کے محسن ہوتے ہیں۔ اور کیا کیا پاتے ہیں یہ تو ہم ذکر کریں گے۔ اعتکاف، رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا۔ ہمارے پاس، دنیا دار کے پاس کوئی غریب فقیر آ جائے، مسکین، وہ مانگے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ اور تھوڑی دیر بیٹھ ہی جائے تو ہم بھی خیال کر کے اسے دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب یہ بیٹھ گیا ہے۔ دنیا دار بھی اسے دے دیتا ہے۔ رب تو رحمان ہے، رب تو رحیم ہے، جو اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں لے کر ہی اٹھوں گا، مولا تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ تو عطا نہیں کرے گا تو کون ہے تجھ سے بڑا عطا کرنے والا؟ کہتے ہیں کہ معتکف کبھی نامراد نہیں لوٹتا ہے۔ اگر اخلاص نیت ہو تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، کبھی خالی جھولی نہیں لوٹتا ہے۔ اور جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کر رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا کمال ایکسپیرینس ہے کہ 10 دن تمام مخلوق سے کٹ کر صرف ناتا خالق سے جوڑ کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، یہ کیسا ایکسپیرینس ہے۔ مفتی صاحب، اعتکاف ہے کتنی اقسام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ اعتکاف دراصل یہ واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے اور نفل بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 قسم ہے۔ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ جو واجب اعتکاف ہے وہ منت کا اعتکاف ہے کہ کوئی شخص منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے یا فلاں بیمار شفا پا جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ جتنے دن کے اعتکاف کی اس نے نیت کی اور منت مانی اتنا اعتکاف کرنا اس پر اس کام ہونے کے بعد واجب ہو جائے گا۔ ہے، اور وہ کچھ دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، مقصد یہ کہ وہ 1 دن کا بھی کر سکتا ہے، 2 دن کا بھی کر سکتا ہے، جتنی بھی وہ نیت کرے گے اتنی دیر کے لیے اس کے ذمہ وہ لازم ہو، کیونکہ وہ منت اس نے خود اپنے ذمہ لازم کی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سنت اعتکاف ہے، وہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے، جو علل کفایہ سنت ہے۔ مقصد محلے میں سے کسی ایک بندے نے بھی اعتکاف 10 دن کا کیا تو سب کی جانب سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے پھر فقہ حنفی میں یہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف لازمی کرتے رہے، اور آخری سال جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یعنی اعتکاف کا اہتمام اتنا زیادہ تھا کیونکہ پچھلے سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے، سفر پر تھے، تو آپ نے پھر اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے کا کرتے تھے، تو جو دن ہوتا ہے اسلامی دن وہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل فقہ حنفی میں ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو، تو وہ جو بندہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ آج کی غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور نیت اعتکاف کی کر لے، اور اس کا پھر وہ سنت اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ علامہ صاحب، ایسے ہی فقہ جعفریہ میں بھی ایسے ہی ہے؟ یہی اقسام ہے؟ جعفریہ میں بھی یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو واجب ہے وہ نظر کی وجہ سے، منت یا قسم کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو مستحب ہے وہ آپ سال بھر میں ان ایام میں کر سکتے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اس حوالے سے روایت ہے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو شیعہ کتب میں ہے کہ آپ نے جب یہ اعتکاف کا خاص حکم ہوا ہجرت کے شروع میں، تو آپ نے پہلے سال پہلے عشرے میں کیا، پھر دوسرے سال دوسرے عشرے میں کیا، تیسرے سال تیسرے عشرے میں کیا، اور اس کے بعد آپ کی یہ روٹین تھی، آپ ہمیشہ ماہ رمضان المبارک کے آخری
आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करते थे। और इसमें एक चीज़ जो अहम है फ़िक़्ह जाफ़रिया कि एतिकाफ़ जो है वो कम अज़ कम 3 दिन का होता है। ठीक है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में ये मुमकिन नहीं कि 1 दिन या 2 दिन, यानी अगर आप मुस्तहब एतिकाफ़ भी कर रहे हैं सुन्नत की नीयत से भी, जब आपने 2 दिन कर लिया तो तीसरे दिन फिर वो एतिकाफ़ आप पे बैठना वाजिब हो जाता है। और जो वाजिब एतिकाफ़ है नज़र वाला वो भी 3 दिन होगा? हाँ जी, वो भी कम अज़ कम आप 3 दिन का होगा। ठीक। अच्छा, उसमें भी रोज़ा होना शर्त है? हाँ जी, उसमें रोज़ा होना शर्त है। अब मिसाल के तौर पे वो खातून जो नमाज रोज़ा नहीं पढ़ सकती वो एतिकाफ़ उन अय्याम में नहीं कर सकती। इसी तरह जैसे जो इंसान हालत सफ़र में है, अगर तो 10 दिन का उसका क़याम हो या उसका सफ़र ये है कि जैसे वैसे ही कोई ड्राइवर पायलट है वो सफ़र में एतिकाफ़ या रोज़ा रख सकता है, लेकिन जो वैसे आम मुसाफिर होता है, चूँकि फ़िक़्ह जाफ़रिया में जब रोज़ा क़स्र होगा तो फिर उन अय्याम में आप एतिकाफ़ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अमर साहब थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा कि फ़ज़ाइल एतिकाफ़ है क्या क्या, और जो कोई भी शख्स एतिकाफ़ में बैठता है वो अल्लाह ताला से किस हद तक करीब हो जाता है? जी देखिए, पहले तो जब कुरान मजीद हम पढ़ते हैं तो कुरान पाक में हमें मालूम होता है कि ये वो इबादत है कि जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम वो भी ये किया करते थे, और वहाँ से ये इबादत शुरू हुई। कुरान पाक कहता है वलक़द अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, कि अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इब्राहीम और इस्माईल से ये अहद लिया कि वो मेरे घर को पाक और साफ़ करें, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। ठीक। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि जो एतकाफ़ है ये एक पुरानी इबादत है, और बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जो आप तशरीफ़ ले जाते थे तो वो भी एक लिहाज से एतकाफ़ या मुराकबा या खलवत गुज़ीनी जो होती थी, खलवत नशीनी, उसका मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तवज्जो ये होता था। ठीक है। और कहते हैं कि गार हिरा में बैठो तो सामने काबा भी नज़र आता है, यानी कुछ उसकी समत और उसकी कुछ डायरेक्शन ऐसी है कि वहाँ बैठकर सामने काबतुल्लाह नज़र आता है। तो वो काबतुल्लाह, मैं हाजिर हुआ हूँ, मैंने देखा है वहाँ से वो काबतुल्लाह नज़र आता है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि आपके दादा जान भी ये एतकाफ़ कह लीजिए या मुराकबा कह लीजिए वो किया करते थे, या अरब में एक रिवायत भी थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर गार हिरा में आप तशरीफ़ रखते थे तो आप एतकाफ़ फरमाते थे या मुराकबा, और फिर ये है कि काबतुल्लाह पर अपनी नज़रें जमाए रखते थे, क्योंकि काबतुल्लाह को देखना भी इबादत है। तो फिर ये सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और फिर ये मामला शुरू हुआ, फिर आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो ये उन इबादात में शामिल ही रही कि जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, तो इसी तरह एतकाफ़ भी उन्हीं इबादात में शामिल रही। सही। तो ये उसकी उस दलील है, उसकी अहमियत पर भी कि अगर पिछली उम्मतों से एक चीज़ चली आ रही है तो ये उसकी अहमियत और उसकी इंतहाई फजीलत पर भी दलील। देखें, इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह करीम अपने नबियों से फरमा रहा है एतिकाफ़ करने वालों के लिए मेरे घर को साफ़ सुथरा करो। यानी नबियों को जो हुक्म दिया जा रहा है कि यहाँ लोग तवाफ़ करेंगे और एतिकाफ़ करेंगे तो काबा मुशर्रफा की जो मस्जिदुल हराम है इसको साफ़ रखो। तो आज चूँकि लोग एतिकाफ़ करेंगे तो तमाम मसाजिद के जो आहले महल्ला हैं उनसे गुजारिश है कि नबियों की सुन्नत को अदा करें। वाह वाह वाह, उसको पहले साफ भी करें, मस्जिदों को साफ करें, यानी जो मस्जिद के खादिम है उन्हीं के ऊपर ही सारा कुछ न रखा करें, आप खुद भी जाके मस्जिद को साफ किया करें। यानी जो बंदा अल्लाह के घर को साफ करता है, मैं हज़रत साहब यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया में हिंदुस्तान के एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उनका शोरूम था और बड़ा बिजनेसमैन बंदा था। अच्छा। तो मैंने कहा जुमेरात को आपसे मैं मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं जुमेरात को यानी शब्बे जुमा को नहीं मिलता। अच्छा। बड़ी मुश्किल, फिर उसने राज बताया। मैंने कहा वजह क्या है? कहते मैं हर शब्बे जुमा को एक मस्जिद की सफाई किया करता हूँ। वाह वाह वाह। तो ये बड़ी सादतमंदी है, बड़ी अच्छी बात आपके जरिए पहुंची है हमारे नाज़रीन तक। दौरान एतकाफ़ भी मस्जिद को साफ रखें। हाँ, उस दौरान एतकाफ़ भी साफ रखें, सिगरेटें अपने साथ ना ले जाएं, बीड़ा ना ले जाएं, इस तरह की चीज़ें जो मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हैं उससे मोतकिफ़ीन परहेज़ करें। और वैसे भी नॉर्मल हमें जिस तरीके से अपने घर की हम सफाई रखते हैं ये बहुत कोताही की जाती है। मस्जिदों के पायदान हो गए, वाशरूम, वज़ू खाना और इस तरह की जगह, फिर हम जब बूट में से अपने पाँव निकालते हैं, बाज़ दफ़ा ऐलान करवाने के लिए अंदर वैसे ही घुस जाते हैं, वो बदबू वाले पाँव मस्जिद के अंदर ले जाते हैं, फिर वहाँ लोग
सजदा करते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ जी, होती जी, है। यानी मस्जिदों को हमेशा खुशबूदार रखें, साफ़ सुथरा रखें, और बिलखुसूस आज के दिन आप हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम की सुन्नत को ज़रूर अदा करें। जो नौजवान हैं वो आज का दिन मस्जिदों में गुजारें और उन चीज़ों को साफ़ करें। एक चीज़ मैं बस वो उस पर उसकी बात करके फिर हम इंशाल्लाह इनफरादी चीज़ों, फ़िक़्ह जाफ़रिया में वो कौन सी चीज़ें हैं जो एतिकाफ़ तोड़ने का बायस बनती हैं, टूट जाता है जिनसे? उसमें यह है कि जब हम एतिकाफ़ की नीयत कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मैं यानी कम अज़ कम 3 दिन के लिए ख़ुद को मस्जिद में ही इबादत के लिए मसरूफ़ रखूँगा, बग़ैर किसी शरई उज़्र के। जब आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। मगर उज़्र शरई ये है कि जैसे किसी की हमने नमाज जनाजा में शिरकत करनी है या किसी अहले ईमान की अयादत के लिए जाना है, उन उमूर की इजाज़त है। और इसी तरह कुछ चीज़ों की जिनकी ममानियत है, हराम है, मसलन खुशबू सूंघना वो हराम होगा। और इसी तरह और कुछ अहकामात हैं, जैसे अगर आप जमा वगैरह करेंगे उससे भी एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा, इस्तिमना, और कुछ ऐसे उमूर हैं कि जिनसे इज्तिनाब करना एतिकाफ़ के वर्रे की वाजिब होता है। ठीक है जी। अहनाफ में अहनाफ में ये है कि अगर रोज़ा तोड़ देता है या रोज़ा नहीं रखता तो उसका एतिकाफ़ नहीं होगा। बिल्कुल, फ़िक़्ह जाफ़रिया में और मस्जिद से बिला वजह निकलेगा। तो आपने फरमाया जिस तरह की शर्त है, जिनमें रोज़ा रख सकते हैं उन्हीं दिनों में एतिकाफ़, रोज़ा ऐसे फ़िक़्ह और हनफिया में मस्जिद से जो है वो निकलेगा तो उससे रोज़ा अपना एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरीके से एक मस्जिद में वो एतिकाफ़ कर रहा है और जुमा पढ़ने के लिए वो जामे मस्जिद में जाता है तो रास्ते के अंदर उसको गुफ्तगू नहीं करनी होती, वो जाएगा, जुमा पढ़ेगा और वापस अपनी उस मस्जिद में आ जाएगा। इस दौरान अगर वो बातचीत करता है तो इससे भी उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा।